Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read your chapter 3 in class 11th history. And we have already read about that various important topics and information about Roman Empire, their expansion, their political system, their economy, their geographical areas, and some little bit information about the whole chapter introduction. We have discussed chapter 3 beyond the three continents is very important because behalf of that chapter we are aware that which type of culture practices in Roman Empire during fifth century BC to 6th century AD and later. I have also explained that these areas and the forest which culture on that areas, it was the area where sometime ago मेसोपोटामियन कल्चर फ्लोज, जो वही क्षेत्र था इस पे कभी बहुत पहले रोमन एम्पायर का विस्तार हुआ। रोमन एम्पायर का विस्तार उसी क्षेत्र पे था जिस पे कभी मेसोपोटामियन संस्कृति का विकास था। आज हम आपके इस टॉपिक में, इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी वर बाई If the first and second century were by and large period of peace, prosperity and economic expansion, the third century brought the first major sign of internal strain. From the 230s, the empire found itself fighting on several fronts simultaneously. In Iran, a new and more aggressive dynasties emerged in 225. They called themselves the Sasanians, and within just 15 years were expanding rapidly in the direction of the Euphrates. In a famous rock inscriptions cut in their language, Sapur first, the Iranian ruler, claimed he had annihilated the Roman army of 60,000 and even captured the eastern capital of Antioch. Meanwhile, a whole series of the Germanic tribes, or rather tribal confederacies, most notable the Alemannia, the Frank and the Goths, began to move against the Rhine and Danube frontiers, and the whole period from 233 to 280 saw repeated the invasions of the whole line of provinces that stretched from the Black Sea to the Alps and southern Germany. The Romans were forced to abandon much of the territory beyond the Danube, while the emperor of this period were constantly in the field against what the Romans called barbarians. The rapid succession of emperor in the 3rd century, 25 emperor in 47 years, is an obvious the symptom of the strain faced by the empire in this period. In this topic, we will discuss the 3rd century crisis. ये तीसरी सदी की
समस्या क्या थी, संकट क्या था, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे आज आपके इस क्लास में। कहता है यदि पहली और दूसरी शताब्दी की बात करें तो कुल मिलाकर यह शांति और समृद्धि का काल था। आर्थिक विस्तार भी हुए, आर्थिक विस्तार का प्रतीक भी बनी। लेकिन वहीं तीसरी शताब्दी को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि यह तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर आई। 230 के दशक में साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर अपने को घिरा पाया, संकटग्रस्त पाया, प्रॉब्लम में देखा। ईरान में 225 एडी के आसपास एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आई। लड़ाकू प्रवृत्ति की एक जो डायनेस्टी थी वो सामने आई, इमर्ज हुई। उन्होंने अपने को सासानियन कहा। ये लोग 15 वर्ष के भीतर ही बड़ी तेजी से यूफ्रेटस की दिशाओं में फैल गए, अपने राज्य का विस्तार कर लिया। अपने आक्रामक रवैये की वजह से जहाँ भी गए जीतते गए, काट तोड़ते जीतते और नष्ट करते हुए संस्कृतियों को आगे बढ़ते चले गए। इन्होंने 3 भाषाओं में लिखे इंस्क्रिप्शंस राकट से मालूम चला कि ईरान के शासक शाहपुर फर्स्ट ने दावा किया, ये क्लेम किया कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया और रोम साम्राज्य की पूर्वी सीमा पे रोमन एम्पायर के कहता है कि रोमन आर्मी ऑफ 60,000 एंड इवन कैप्चर द ईस्टर्न कैपिटल ऑफ एंटियोक, कि रोमन साम्राज्य की पूर्वी सीमा एंटियोक जो थी उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। शाहपुर फर्स्ट द इरानियन रूलर क्लेम ही हैड एनिहिलेटेड a Roman army of 60,000 and even captured the eastern capital of Antioch. Meanwhile, a whole series of Germanic tribes or other tribal confederates, most notable as the Albania, Frank, Goth, began to move against the Rhine and Danube frontiers. कहता है कि जब उसने रोम, पूर्वी रोम की राजधानी एंटियोक पे कब्जा कर लिया और उस बीच कई जर्मन मूल की जनजातियां अथवा राज्य जो कई समुदायों के रूप में थे, जिनमें एक प्रमुख एल्मनाई, फ्रैंक और गोथ थे, ने राइन और डेन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और 223 to 280 तक समूची टाइम पीरियड के अंतर्गत उन्होंने पूरे प्रांत की पूरी सीमा पे कई बार आक्रमण हुए। कई बार लोगों ने उस क्षेत्र में हमला किया। सागर से लेके आल्प्स और दक्षिण जर्मनी तक फैले हुए थे क्षेत्र, तो कई बार इन लोगों से आक्रांकित हुए। ये ट्राइबल पीपल सासानियन लोगों ने काफी दूर तक के क्षेत्रों पे कब्जा करने का प्रयास किया, जीतने का प्रयास किया। और ये अवधि, ये टाइम रोमवासी और डेन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए रोमवासियों को मजबूर कर दिया। रोमवासी उस क्षेत्र को, डेन्यूब के आसपास के क्षेत्रों को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ गए। ये काल, ये टाइम सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे जिन्हें रोमवासी, जिन्हें रोम की भाषा में बर्बर कहते थे, बारबेरियंस कहते थे। 3rd सेंचुरी थोड़े थोड़े अंतर में अनेक सम्राट भी हुए। एक ये भी समस्या थी 3rd सेंचुरी क्राइसिस की कि कम समय में अधिक सम्राट हुए। कहता है 25 इंपरर हुए, 25 इंपरर्स हुए। कितने समय में? इन 47 ईयर्स, 47 सालों में। 47 सालों में 27 शासक हो रहे हैं। ये भी एक समस्या की बात थी। और
इस अवधि को आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या के समय रही होगी। थर्ड सेंचुरी क्राइसिस क्या था, इसको समझने के लिए यदि पैराग्राफ को आप समझें तो कहता है ऑथर कि रोमन एम्पायर में थर्ड सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी सेकेंड सेंचुरी तो समृद्धि और शांति का काल था, आर्थिक उन्नति भी हुई, लेकिन थर्ड सेंचुरी आते आते कई सारी समस्याओं से रोमन एम्पायर घिर गया। 230s तक आते आते एक नया राजवंश, एक नई डायनेस्टी जो बड़ी आक्रामक थी, लड़ाकू प्रवृत्ति की थी, जिसे वो लोग अपने को सासानियन कहते थे, उन लोगों ने एक बड़े क्षेत्र को जीत लिया। शापुर फर्स्ट जो ईरानियन शासक है अपने एक अभिलेख में लिखवाता है कि रोम के 60,000 सेनाओं को उसने मार भगाया और रोम की पूर्वी सीमा एंटियोक पर उसने कब्जा कर लिया। इसके साथ साथ कुछ और जनजातियाँ जो आक्रामक थीं, रूलर्स जो हमला करती थीं, वो रोम एम्पायर पे काफ़ी क्षति पहुँचाई। डेन्यूब नदी तक के क्षेत्रों को उन्होंने आक्रांत किया। रोम के लोगों को पीछे हटना पड़ा। इस तरीके से ये काल आक्रमण का काल था, ये काल आंतरिक समस्याओं का काल था, आंतरिक अशांति का काल था। साथ ही एक और समस्या से रोम एम्पायर को घिरना पड़ा, और वो समस्या थी कम समय में अधिक सम्राटों का गद्दी पे बैठना, सत्तासीन होना, इंथ्रोन्ड होना। 25 ईयर्स में 47 एम्परर आ रहे हैं, ये भी एक समस्या की बात थी। आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है और जो बाउंड्री जो अनसेफ है, आउटसाइडर अटैक्स हो रहे हैं, इससे ये थर्ड सेंचुरी प्रभावित रही। इसीलिए इसे थर्ड सेंचुरी क्राइसिस कहा गया, द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। आई होप you have understand it. You will understand properly what I am telling, what the paragraph explained. Okay, next topic, gender literacy and culture. Next topic is gender literacy and culture. One of the more modern feature of the Roman society was the widespread, the prevalence of the nuclear family. Adult son did not live their families, and it was exceptional for adult brothers to share common households. On other hand, slaves were included in family as the Roman understood this. By the late Republic, the 1st century BC, the typical form of marriage was one where the wife did not transfer to her husband's authority, but retained full right in the property of her natal family, while the woman's dowry went to the husbands for the duration of the marriage. The woman remained the primary heir of his father and the independent property owner on her father's death. Thus, Roman women enjoyed considerable legal right in owning the managing property. In other words, in law, the married couple was not one financial entire but two, and the wife enjoyed complete legal independence. Divorce was relatively easy and needed no more than notice of initial and dissolve the marriage by either husband or wife. On the other hand, where males married in their late 20s or early 30s, women were married off in the late teen or early 20s. So there was an age gap between husband and wife, and they would have encouraged a certain inequality. Marriage were generally arranged, and there is no doubt the women were often subject of domination by their husbands. Augustine, the great Catholic bishop,
who spent most of his life in North Africa, tells us that his mother was regularly beaten by his father and that most other wives in the small town where they grew up had similar dresses to sew. Finally, father had substantial legal control over their children, sometimes to shocking degree. For example, a legal power of life and death in exposing unwanted children by leaving them out in the cold to die. Dear student, in this topic, as you know the name of this topic, gender, literacy and culture, we will discuss about the condition of gender, male and female condition. We will discuss the women condition in Roman Empire. This topic is very important. You have to read very seriously because in this topic there are so many questions arise in your exam. Gender, literacy and culture. What about gender, what about literacy and what about culture of the Roman Empire? It is clearly explained. Rights of the women, rights of the husbands and the family, dowry system, property rights, everything is explained in this paragraph. One of the more modern features of the Roman society was the widespread the prevalences of the nuclear family. Adults did not live with their families. There is no need to explain. वो आसान है. रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी, ये एकल परिवार था, न्यूक्लियर फैमिली थी. न्यूक्लियर फैमिली का व्यापक रूप से समाज में प्रचलन था. सोसाइटी में प्रैक्टिसेस थी न्यूक्लियर फैमिली की. जॉइंट फैमिली नहीं, न्यूक्लियर फैमिली. जो बड़ा पुत्र था, एडल्ट पुत्र, वो अपने परिवार के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे, बहुत कम जॉइंट फैमिली में रहते थे. बड़े जो लड़के होते थे वो परिवार छोड़ देते थे और सेपरेट कहीं अपना निवास बना के रहते थे. दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया गया था क्योंकि रोमवासी दासों को परिवार का अंग मानते थे. रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी. समानता गणतंत्र में समानता जो ये रोमन गणतंत्र था फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास में, तो मैरिज सिस्टम थी, विवाह प्रथा जो थी वो गणतंत्र परवर्ती काल में जो विवाह प्रथा का जो विकास हुआ, विवाह का ऐसा रूप जिसमें पति पत्नी अपनी संपत्ति एक दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया करती थी. पत्नी अपना प्रॉपर्टी पति को नहीं देती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वो अपने अधिकार बनाए रखती थी. विमेंस को दहेज, डॉरी वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास जो चला जाता था उस पर महिला का अधिकार बना रहता था. किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी भी रहती थी. डॉरी में प्रॉपर्टी प्राप्त करती थी और डॉरी में प्रॉपर्टी प्राप्त करने के बाद भी वो अपने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार रखती थी. और जब पिता की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी संपत्ति पे वो स्वतंत्र रूप से नियंत्रण प्राप्त कर लेती थी. पूरी संपत्ति पिता की लड़की को मिल जाती थी. इस प्रकार रोम में महिलाओं की संपत्ति के स्वामित्व, इसलिए इस प्रकार रोम में जो महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स थे वो व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त किए हुए थे. दूसरे शब्दों में कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्ती माना गया था. एक फाइनेंशियल पावर के रूप में एक नहीं माना गया था पति और पत्नी को, बल्कि दोनों को सेपरेट किया गया था. पत्नी अलग और पति अलग, दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टी राइट्स हैं. पत्नी को पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार था. डॉरी में जो दहेज लाती थी उस पर उसका अधिकार था.
अब इसके बाद कानून के शब्दों में, दूसरे शब्दों में ये बात कहें तो कहते हैं कि दूसरे शब्दों में कानून के अनुसार पति और पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय या फाइनेंशियल पावर नहीं बल्कि सेपरेट, अलग अलग माना गया था। पत्नी को पूर्ण वैधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तलाक देना, डाइवोर्स अपेक्षाकृत आसान था। इसके लिए पति और पत्नी दोनों द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे से सूचना देना ही काफ़ी था। अगर कोई पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती या कोई पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता तो आसानी से डाइवोर्स दिए जा सकते थे। डाइवोर्स प्रक्रिया, प्रोसेस बहुत इजी थी। डाइवोर्स में सिर्फ एक मैसेज दे करके एक दूसरे से अलग हुआ जा सकता था। दूसरी ओर पुरुष 28, 29, 30 to 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी की आयु 16 से 18, 22 से 23 साल की आयु में की जाती थी। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था, एक डिफरेंस था। पति और पत्नी के बीच जो आयु थी, एज थी, उसमें काफ़ी डिफरेंस दिखाई देता है। पुरुष की शादी 28-29 साल की उम्र में या 30-32 साल की उम्र में होती थी, जबकि लड़की की शादी 16-17 से 22-23 साल की उम्र में कर दी जाती थी। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होते थे, परिवार के द्वारा करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं के ऊपर अधिकार हस्बैंड का होता था। पति अपनी पत्नी पे पूरा अधिकार रखता था। सेंट अगस्टीन जो एक बहुत बड़े बिशप थे, उन्होंने इस बात का उल्लेख करते हुए लिखा है एग्जाम्पल के रूप में, मेरे पिता के द्वारा मेरी माँ को बड़ी बुरी तरह से पीटा जाता था। कहते हैं कि पिता द्वारा नियमित रूप से मेरी माँ की पिटाई की जाती थी और छोटे से नगर में वे बड़े हुए। उनकी अधिकतर पत्नियां इसी तरह की पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोच दिखाती थी। अंततः पिताओं का अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था। कभी कभी तो पिता अपने पुत्रों के साथ अमानवीय व्यवहार करता था, बर्बर व्यवहार करता था, जो दिल दहलाने वाली सीमा तक पहुँचे थे। जैसे पिता के अवांछित पुत्र, इलीगल वाइफ से जो उत्पन्न होते थे पुत्र, उन बच्चों के लिए उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार पिता को प्राप्त था। कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशंस मिले जिनमें कभी कभी पिता अपने बच्चों को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। ठंड से बच्चे मर जाते थे। लिटरेसी की स्थिति क्या थी? कहता है, What about literacy? It is certain that rate of casualty, the literacy varied greatly between different parts of the empire. For example, in Pompeii, which was buried in a volcanic eruption in 79 CE, there is strong evidence of widespread casual literacy. Walls on the main streets of Pompeii often carried advertisement and graffiti were found all over the city. कहता है कि शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, साक्षरता की स्थिति क्या थी? यह निश्चित है कि वहाँ पे एक शिक्षा व्यवस्था थी। सर्टेन रेट्स लिटरेसी थी, या दूसरे आसान शब्दों में तो काम चलाओ शिक्षा व्यवस्था वहाँ पे चल रही थी। साक्षरता की दर साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफ़ी अलग अलग थी। उदाहरण के लिए अगर पोम्पोई नगर की बात करें, ये पोम्पोई नगर जो 79 CE में एक ज्वालामुखी के फटने से दफन हो गया था, इस बात का ठोस प्रमाण है कि वहाँ पे साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। लिटरेसी रेट बड़ी हाई अमाउंट में वहाँ दिखाई देती है पोम्पोई सिटी में, जो वोल्केनिक इरप्शंस में नष्ट हो गए थे 79 CE के आसपास। वहाँ पे पोम्पोई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में जो ग्राफिटी की गई है, अभिलेखन किया गया है, पाए गए हैं। दीवार पूरी लिखे भरे पटे हैं। इसके विपरीत मिस्र में स्थिति क्या है? कहता है, बाई कॉन्ट्रास्ट
The Egypt were hundred of papyrus survive, and most formal documents such as contract were usually written by the professionals, scribes, and they often tell us the X or Y is unable to read and write. But even here, the literacy was certainly more widespread among certain categories such as the soldiers, army officials and state managers. कहता है कि जो लिटरेसी की अवस्था पोम्पोई नगर में थी उसके विपरीत हमें मिस्र में लिटरेसी कैसी दिखती है, साक्षरता कैसी दिखती है। कहते हैं इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपैरिस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि बॉन्ड, संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। ये पेपरिस, ये दस्तावेज आमतौर पर कॉमर्शियल जो राइटर्स थे उनके द्वारा लिखे गए। ये दस्तावेज अक्सर हमें ये बताते हैं, डॉक्यूमेंट्स अक्सर हमको ये बताते हैं कि अमुक व्यक्ति क अथवा ख पढ़ लिख नहीं सकता, किंतु यहाँ भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसे सैनिकों, फौजी अफसरों और संपदा प्रबंधकों में। कहने का तात्पर्य यह है कि इजिप्ट में लेखन कला का विकास प्रॉपरली नहीं हो सका था। कम लोग लिखना और पढ़ना जानते थे, क्योंकि जो बॉन्ड्स हैं, जो कमर्शियल बॉन्ड्स जो पाए गए उसमें लिखा है यस, कहता है ऑफन टेल्स अस एक्स और वाई इज द अनेबल टू रीड एंड राइट। एक्स और वाई पढ़ लिख नहीं सकते, लेकिन वो बॉन्डिंग कर रहे हैं, वो जो कमर्शियल बॉन्डिंग कर रहे हैं, संविदा लिखवा रहे हैं, उसके आधार पर उनको ये हम समझ सकते हैं कि उसमें लिखने पढ़ने की कला बहुत कम लोगों के पास रही होगी। ये सीमित व्यक्ति के लोग सैनिक रहे होंगे, फौजी रहे होंगे या अफसर और संपदा प्रबंधक के में लगे हुए लोग रहे होंगे जो ये काम करते थे। अब कल्चरल डाइवर्सिटी भी बात कर ले। कहता है द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द एम्पायर was reflected in the many way and at many levels. The vast diversity of religious cults and the local deities, the plurality of the language that were spoken, the style of the dress and custom, the food people ate, their forms of social organization, tribal, non-tribal, even their patterns of settlements. Aramaic was the dominating language group of the Near East, at least west to Euphrates. Coptic was spoken in Egypt, Punic and Berber in North Africa, Celtic in Spain, Northwest, but many of these linguistic cultures were purely oral, at least until the script was invented for the Armenian, for example, only began to be written as late as the 5th century, where these already Coptic. Coptic translation of the Bible by the middle of the 3rd century. Elsewhere, the spread of Latin displays the written from the language that were otherwise widespread. This happened notably with Celtic, which ceased to be the written after the 1st century. What about culture? The cultural diversity of the empire was reflected in many ways at many levels. रोम साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता के कई रूप कई स्तरों में दिखाई देते हैं, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल में कई सारी भाषाएं, वेशभूषा, विविध शैलियाँ, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठन के रूप में जनजाति और अन्य लोग का वर्ग, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप। अरामाइक निकटवर्ती पूर्व, कम से कम फरात के पश्चिम तक के क्षेत्र में अरामाइक भाषा बोली जाती थी। मिस्र में काप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक भाषा तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तरी पश्चिम में कैल्टिक भाषा बोली जाती थी। परंतु उनमें से बहुत सी भाषाई, सांस्कृतिक
पूर्णतः मौखिक थी, रिटन नहीं था उनके पास, सिर्फ ओरल बात करते थे, वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते थे। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। जैसे कहाँ कहाँ कहता है अराबिक जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो कम से कम यूफ्रेटस के पश्चिमी क्षेत्र पे अराबिक बोली जाती थी। मिस्र में काप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक और बर्बर, और स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। परंतु बहुत सी भाषाएं सांस्कृतिक पूर्णतः मौखिक थी। वे कम से कम तब तक मौखिक रही जब तक उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं किया। उदाहरण आर्मेनियाई भाषा का लिखना भी बहुत देर बाद 5th सेंचुरी एडी में शुरू हुआ। हालांकि 3rd सेंचुरी तक या मिड 3rd सेंचुरी तक बाइबल काप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। कई स्थानों पर लैटिन भाषाओं का प्रसार उन भाषाओं के लिखित रूप में स्थान ग्रहण कर लिया जिनका पहले से ही व्यापक प्रसार था। ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ, जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद हो गया, क्योंकि केल्टिक भाषा की जगह एक नई भाषा लैटिन लैंग्वेज ने ले ली। तो इस तरीके से भाषा में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। इस तरीके से आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कल रीड करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक आपका है इकोनॉमिक एक्सपेंशन। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।